Good morning, students. Once again, let's we discuss the important board case studies related to the class 12 business studies. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of the case studies from the different chapter. And all these types of the case studies already asked in the CBSE board examination. So, for your examination purpose, let's we discuss, revise and recall all the topics of the class 12 business studies, and you can see that we almost discussed the board questions related to the chapter number 1, nature and significance of management, principle of management, as well as the planning. And in the last video you can see that we discussed the case studies on the organizing, planning and the directing, which are very important in the function of the management. In this video, let's we discuss the different case studies related to the different topic of the class 12 business studies. That is an specific topic is in planning, organizing, staffing, directing and controlling. And after the completing the case study session, we are introducing and we are talking about the very important series for your case study, that is an examination booster. And we discussed in detail what are the impact of the COVID-19 on the different sector of our economy, because you know very well in the examination there are basically various types of the case studies are interlinked with the COVID-19 situation. सो आफ्टर कंप्लीटिंग ये केस स्टडी कंप्लीट करने के बाद, बोर्ड के केस स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम लोग नई सीरीज़, एक नया सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे वीडियोस का. दैट इज़ उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन डिटेल with PDF notes. So without creating a delay, let's we discuss and start the today's session, today's video. Okay, so let's start. And Toco Limited is a two-wheeler manufacturing company which is very popular for its fuel-efficient scooters and motorcycles. It means Toco Limited एक two-wheeler manufacturing company है जो बहुत ही पॉपुलर है कि वो बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट स्कूटीज़ एंड मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करती है. सौरभ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वांट्स टू, सौरभ जो उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने ये डिसाइड किया कि दे वांट टू इंक्रीज द, यस क्वेश्चन इज, दे इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म due to increased demand in the market. For this, he has to obtain, utilize and maintain a satisfactory and satisfied workforce. उसके लिए एक satisfactory and satisfied workforce की ज़रूरत है, यानी workers की ज़रूरत है. And demand भी बढ़ रहा है product का. For this, he identified the requirement of workforce, followed by recruitment, selection and placement, promotion and appraisal of the development of the personnel. इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले वर्कफोर्स एनालाइज किया, कितने वर्कफोर्स की ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल जैसे लोगों की व्यवस्था की. In order to attain occupational specialization, Saurav has grouped the jobs of similar nature and has set up a separate department which report to a coordinating head. उसने क्या किया, इन सारे कामों के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप किया और वो किसी एक को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे. इसमें लिखा है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन द अबव पैरा. आपको ये बताना है कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ डिस्कस किया गया है. So it is very easy question. And the number second, which type of organization structure is most suitable for Toco Limited? कौन सा organizational structure suitable है Toco Limited के लिए? And number third, state the 3 advantages of such an organizational structure. कौन सा 3 advantage है organizational structure का इस point of view से अगर देखा जाए. So जो function of management यहाँ पे highlight हो रहा है या दिख रहा है वो है staffing and organizing. So you can see that इस पूरे पैराग्राफ में we are talking about the recruitment and selection, that is an staffing process. You know very well in the staffing process
Firstly, we identify the we analyze the workforce and workload analysis which is called ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं कि कितने वर्कर्स हमारे पास हैं और कितने वर्कर्स की और ज़रूरत है. ओके. नंबर सेकेंड, इसके बाद हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन के साथ साथ अप्रेजल और पर्सनल यानी कि ट्रेनिंग की बात करते हैं. किसके, ऑफ द वर्कर्स. ये पूरा जो है स्टाफिंग में आता है. और रही बात, अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस पूरे पैराग्राफ में यू कैन सी दैट यहाँ पर उसने क्या किया है, जो सिमिलर नेचर ऑफ ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डिपार्टमेंट बना ले. लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सौरभ हैज़ ग्रुप द जॉब ऑफ सिमिलर नेचर. उसने जो सिमिलर नेचर ऑफ ग्रुप है उनको एक साथ ग्रुप कर दिया. उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन. और उसने क्या किया, एंड हैज़ सेटअप सेपरेट डिपार्टमेंट. और उसने जो सिमिलर नेचर ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्क हैं उनको से एक डिपार्टमेंट बनाया. और उस डिपार्टमेंट का ये भी डिसाइड कर दिया था कि पहले, सबसे पहले उसने डिफरेंट एक्टिविटीज डिसाइड की, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, सब डिसाइड किया. आफ्टर डैट उसने उसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया. यानी पहले क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क. सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड था असाइनिंग और ड्यूटी, उनको ड्यूटीज़ दिया. फिर उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप किया. तो ये कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, डिविजनल की फंक्शनल. इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल, क्या फंक्शन के बेसिस पे बांटा गया. और ऑर्गेनाइजिंग तो है. इसके तीन मेन एडवांटेजेस क्या है डिविजनल फंक्शनल स्ट्रक्चर के. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इंक्रीज करते हैं मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी. ओके. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. The question number 8 is, one of the very basic function of management involving deciding in advance what to do and how to do. It involves setting objective and developing appropriate course of action to achieve these objectives. It provides a rational approach for achieving predetermined objective. The other managerial function involve implementation of plan by clearing jobs and working relationship. It aims at deploying resources for attainment of identified and desired result. It coordinates human efforts, assembles resources and integrates both into a unified whole. पूरे क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि एक मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन है जिसमें हम पहले से एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है. इसमें हम ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं, डेवलपिंग करते हैं अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कई सारे ऑप्शन डिसाइड करते हैं, और रैशनल अप्रोच से उसमें से किसी एक ऑब्जेक्टिव को, किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं. फिर उसी ऑप्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें. यही सब पूरी कहानी लिखी हुई है. और इस कहानी के बेसिस पे द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द पैरा. इसमें क्लियरली लिखा है एक चीज़ और, द अदर मैनेजर फंक्शन इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय कैरिंग जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप. जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग का वर्ड आता है. और इसमें ये भी लिखा है, इट एम्स एट डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट. इट कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल रिसोर्स एंड इंटीग्रेट बोथ इनटू द यूनिफाइड होल. मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो बेसिक रिसोर्सेज हैं कंपनी के, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, उनको इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना, इट इज़ अ वेरी बेसिक पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कौन सा फंक्शन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, दैट इज़ एन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. और स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ईच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेंशनाइज इन द अबव केस. तो इसका सॉल्यूशन है कौन कौन सा स्टेप यहाँ फॉलो किया गया है. दैट्स इन, अगर हम बात करें स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो यहाँ फॉलो किया गया है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस, ये भी किया गया है, और आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, evaluating alternative courses and selecting an alternative, implementing the plan
एंड फॉलो अप। ठीक है, ये सारे प्लान्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो वो हैं आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, फोर्थ इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। कुणाल, a CEO of a company, believes in using environment-friendly technique of the production to avoid government intervention in the business. He firmly believes in setting benchmark which must be adhered to during production. It allows interchangeability and of manufactured parts and products, and to raise the level of quality in material. Kunal, being a CEO of the company, aims to establish a standard of performance of man and machine. तो यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन कुणाल एक कंपनी है जिसका वो CEO है। वो कंपनी ये बिलीव करती है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक से प्रोडक्शन करेगी और अवॉइड करेगी गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बिजनेस में। वो बिलीव करती है कि वो बेंचमार्क सेट करेगी और वो कह रहा है इंटरचेंजेबिलिटी करेगी मैन्युफैक्चर पार्ट्स का, ताकि जो लेवल ऑफ क्वालिटी है मटेरियल की वो बढ़े। और कुणाल बीइंग अ CEO ऑफ द कम एम्स एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द मैन एंड मशीन। वो चाहते हैं कि मैन और मशीन जो हैं उनकी परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड अच्छा हो, बेटर हो। तो सिंपल से यहाँ बोला है एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट कुणाल इज़ वर्किंग। तो कुणाल इज़ अ CEO ऑफ द कंपनी एंड CEO आर रिलेटेड टू द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। सेकेंड, नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ द टेलर यूज बाय द CEO ऑफ द कंपनी। उसने कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इन इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसकी जो टेक्निक्स हैं वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। चाहे वो प्रोडक्शन का वर्क हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का वर्क हो, चाहे वो प्रोडक्शन का वर्क हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान का वर्क हो, इस पूरे फंक्शन में यू कैन सी दैट we are talking about the standardization of the work. We are focusing on the standardization of work. It means अगर वर्क स्टैंडर्ड रहेगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट, नेम एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कुणाल वांटेड टू अवॉइड बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें क्लियरली लिखा है इस पैराग्राफ में कि वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचना चाहता है। वो ऐसा प्रोडक्शन मेथड फॉलो नहीं करना चाहता है जिसके लिए गवर्नमेंट उसको इंटरवेंट करे, उसे रोके, उसे परेशान करे या उसके प्रोडक्शन को एक तरह से रोक दे। तो इस सिचुएशन में यू कैन सी दैट कुणाल इज़ फोकसिंग ऑन द लीगल इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Naveen is a managing director of Taste Good Limited, a firm engaged in production of eatable like biscuits, breads, chips, snacks, etc. Since eatable are supposed to be consumed within a prescribed period, hence Naveen makes sure that the date of manufacturing expiry is mentioned on all the product produced by his firm. नवीन जो है वो टेस्ट गुड लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर है जो इंगेज्ड है कुछ ईटेबल प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट, ब्रेड, चिप्स और स्नैक्स में। और यू नो वेरी वेल ईटेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खाने के लिए एक प्रॉपर टाइम होता है, पीरियड होता है। नवीन मेक श्योर डैट द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नवीन को ये चाहता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो हर प्रोडक्ट पे वो चाहता है जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन हो। He realized the importance of having a good and efficient distribution channel for the purpose of selling staples. वो चाहता है कि जो ईटेबल्स हैं, जो ईटेबल्स प्रोडक्ट्स हैं, उनका सेल क्विक हो, तेज़ी से हो, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो। पहला तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, जैसे फर्स्ट इज नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच नवीन इज़ वर्किंग। तो नवीन क्या है, इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें आता है टॉप लेवल में आता है। सेकेंड इसमें पूछा है मैनेजिंग नेम एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट विच नवीन इज टेकिंग केयर ऑफ। यहाँ इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि नवीन किस कंज्यूमर राइट के बारे में बात कर रहा है जिस पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है कि हम ऐसा काम ना करें जिससे कि
कंज्यूमर का जो राइट है वो वायलेट हो। तो ये है राइट टू इन्फॉर्मेशन। यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन देयर शुड बी अ सफिशिएंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट कम्युनिकेट टू द परचेजर। यानी अगर परचेजर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसे इस प्रोडक्ट के बारे में सफिशिएंट एंड रीजनेबल नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर उसे उस नॉलेज पता नहीं है, इट मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो राइट है वो वायलेट हुआ है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं किस मार्केटिंग के किस एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया है, तो उसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है, दैट इज़ एन लेबलिंग। लेबलिंग में पता है ना, यू नो वेरी वेल, लेबलिंग हम क्या करते हैं आफ्टर पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को कन्वीनियंट बनाता है यूज़ करने में और उसे सिक्योर करता है। उसी तरह से लेबल क्या करता है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे स्टेचुरी इन्फॉर्मेशन और यूजेज इन्फॉर्मेशन, कैसे यूज़ करना है, इस तरह की चीज़ें जो हैं उस तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। मूव लिमिटेड इज अ 4-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच मैन्युफैक्चर स्मॉल एंड मिड साइज कार। यानी मूव लिमिटेड एक 4-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है स्मॉल और मिड कार। इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गुप्ता फोकसेस ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नीड्स। जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने फोकस किया कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ही बिलीव्स डैट इन द लॉन्ग रन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया या देखा कि जो बिजनेस वो चला रहे हैं उसके लिए उन्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, एक कि अगर एक बिजनेस को लॉन्ग रन में क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट बाय अंडर आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर। उसके लिए उसे अपने जो प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर हैं उनकी नीड को पहचानना ज़रूरी है। ही ऑल्सो गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। उन्होंने कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेस सेल्स डेवलप किए ताकि वो अपने कंज्यूमर को पोस्ट सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकें। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कई तरह के पर्सनल टूल जैसे कि मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड रेडियोज़ में प्रमोशंस उन्होंने क्या कराए अपने। अब इस पूरे पैराग्राफ में यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी फॉलोड बाय द संजय गुप्ता। तो इज वेरी क्लियर, यहाँ पर उन्होंने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे बिलीव किया बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट दी टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। यानी वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें उनके कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फैक्शन मिल सके। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द राइट विच इज प्रोटेक्टेड इन बाय द कंपनी। इसमें कौन सा राइट कंपनी का प्रोटेक्ट हुआ है। सो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट द वेरी इंपॉर्टेंट राइट इज प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, दैट इज राइट टू बी हियर्ड, बिकॉज इसमें लिखा है ही हैज़ सेट अ कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेस सेल। उन्होंने कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेस सेल्स इस्टेब्लिश किया जिससे वो अपने कंज्यूमर को अच्छी पोस्ट सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ओके, द नेक्स्ट विल बी आइडेंटिफाई द प्रमोशनल टूल यूज बाय द कंपनी। सो यू कैन सी दैट उसने इम्पर्सनल टूल ऑफ प्रमोशन को अडॉप्ट किया। यू नो वेरी वेल द वेरी easy and very easy hint for the student is given in this paragraph, that is an impersonal tool of promotion. You know very well impersonal tool of promotion क्या होता है, जिसमें जो एडवर्टाइज कराता है, जो सेलर है, मैन्युफैक्चरर जो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराता है, उसके लिए वो फेस टू फेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करता। इम्पर्सनल टूल क्या होते हैं, जैसे कि मैगजीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कराकर कस्टमर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। और उस प्रमोशनल टूल के कौन कौन से फीचर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, कौन सा फिलॉसफी यहाँ फॉलो हुआ है, दैट इज़ एन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेकेंड, कौन सा कंज्यूमर राइट यहाँ प्रोटेक्ट किया गया है, राइट टू बी हियर्ड, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेज सेल्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि उनको बेटर पोस्ट सेल सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सकें। और कौन सा प्रमोशनल टूल यहाँ यूज़ हुआ है, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग, क्योंकि ये पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन टेक्निक होती है जिसमें हम मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो के थ्रू लोगों को प्रोडक्ट का प्रमोशन कराते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड द थ्री वेरी बेसिक फीचर ऑफ द advertisement, that is in paid form,
impersonal, and identify sponsor. Now we are moving to the question number 12. Question number 12 is very easy. Sanjay is a supervisor in a factory. He consults his subordinate before taking any decision and encourage them to participate in the decision making process. संजय एक सुपरवाइज़र है फैक्ट्री में. वो कंसल्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी डिसीजन लेने से पहले और उनको इनकरेज करता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें. ओके, इन सर्टेन केसेस the message is not transmitted in the language understandable to the employees. He has noticed certain deviation in the production targets. He wants to analyze the deviation in order to take corrective actions. So you can see that संजय एक सुपरवाइज़र है फैक्ट्री में. ही कंसल्ट, वो अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट लेता है किसी डिसीजन को लेने के लिए एंड उनको इनकरेज करता है कि वो डिसीजन में पार्टिसिपेट करें. और कुछ सर्टेन में क्लियरली ये लिखा जाता है कि मैसेज इज़ नॉट ट्रांसमिटेड इन द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टू द एम्प्लॉयज़. यानी मैसेज उस लैंग्वेज में ट्रांसमिट नहीं की जाती जिस लैंग्वेज में एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड कर पाएँ. ही हैज़ नोटिस सर्टेन डेविएशन इन द प्रोडक्शन टारगेट. उसने ये भी देखा कि प्रोडक्शन टारगेट्स में भी कुछ डेविएशंस हैं. ही वॉन्ट्स टू एनालाइज द डेविएशन इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन. और वो उस डेविएशन को एनालाइज करने के लिए एनालाइज करता है और ताकि वो सही सही करेक्टिव एक्शन ले सके. सिंपल सा क्वेश्चन फैला है. आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच राकेश इज़ वर्किंग. कौन से लेवल पे राकेश वर्किंग है? तो पहले तो क्वेश्चन की प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर. संजय इज़ अ सुपरवाइजरी इन अ फैक्ट्री. संजय यहाँ पे नेम है बट यहाँ माई मिस्टेकली नेम प्रिंटेड हो गया राकेश. सो द राकेश या संजय इज़ वर्किंग एट दिस लेवल इज़ अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज कॉल्ड सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि वो सुपरवाइजर है. सेकेंड, बीइंग अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट गाइड संजय हाउ टू एनालाइज द डेविएशन. आपको ये बताना है कि एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट संजय कैसे इन डेविएशन को एनालाइज करें. सो यू नो वेरी वेल व्हेन वी एनालाइज द डेविएशन इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस. So first of all, we are focusing on the two important major controlling techniques, that is in critical point control and management by exception. So while analyzing the deviation, Sanjay should follow the following principle of management control, that is in critical point control and management by exception. According to the critical point control, we should focus on the key result areas. We should focus. It means the deviations for which areas which are highly understandable, highly affected, so उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. And those factors, those areas which does not affect properly to the management, to the controlling system, उस पर हमें लीव आउट कर देना चाहिए. सिंपल सा वो रिजल्ट उस फैक्टर्स पे, उस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. रही बात मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन से इज डैट वी कुड नॉट कंट्रोल एवरीथिंग. हम सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकती. सो फॉर दिस पर्पज वी हैव टू फॉलो द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट एक्सेप्शन मीन्स एक्सेप्टेबल डेविएशन, रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल डेविएशन. यानी कि जैसे कि अगर किसी भी काम में 10% का लॉस हो रहा है तो हम 2% तक का लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, 3% तक का लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ एन एक्सेप्टेबल डेविएशन. 7% तक का हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सो 3% इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल डेविएशन. सो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन 3% एक्सेप्टेबल है, 7% एक्सेप्टेबल, मतलब एडिशनल 7% इज नॉट एक्सेप्टेबल. एंड लास्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल फॉलोड बाय द संजय. संजय कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करता है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन संजय फॉलो द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बिकॉज वो पार्टिसिपेट कराता है किसी मैनेजमेंट काम के लिए भी. लोगों को क्या करता है, इंक्लूड करता है कि वर्कर्स इंक्लूड हों और डिसीज़न लेने में सपोर्ट करें और किसी भी काम को करने से पहले वो अपने सबऑर्डिनेट्स से कंसल्ट करता है. नाउ let's we move to the next question. Question number 30. ABC are thinking to manufacture school bags. They have decided to set up their manufacturing unit in the rural areas of Jharkhand. यानी वो सेटअप करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रूरल एरिया झारखंड में. एंड वेयर पीपल हैव फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़,
जहाँ पे लोगों के पास कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. They have also decided what they will neither give nor avail credit while doing their business. So they have decided, उन्होंने डिसाइड किया कि ना ही वो क्रेडिट पे सामान खरीदेंगे ना क्रेडिट पे सामान बेचेंगे. यहाँ पर सिंपल सा क्लियर है. नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द वेब केस. इट इज़ वेरी सिंपल. द function is planning, in which we deciding in advance what to do, how to do, when to do, by whom to do and when to do. Number second, name the type of plan discussed in the above para. It is an policy. वैसे तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन केस स्टडी में ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर, तो ये गिवन है कि इस पूरे पैराग्राफ में कौन सा टाइप ऑफ प्लान है. दे यू नो वेरी वेल, दे आर बेसिकली टू टाइप ऑफ द प्लान, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान. तो पॉलिसी इज़ अ स्टैंडिंग प्लान जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. उस तरह से कंपनी ने एक पॉलिसी डिसाइड की कि दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड दैट दे विल नाइदर गिव और नॉर अवेल क्रेडिट वाइल डूइंग देयर बिजनेस. ना तो वो क्रेडिट पे सामान बेचेंगे ना क्रेडिट पे सामान खरीद कर लेकर आएंगे. सो इट इज़ कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस. द थर्ड वन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर द फर्म. आपको ये बताना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो टाइप है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहेगा. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि दैट इज़ एन फंक्शनल स्ट्रक्चर, बिकॉज जो ये बिजनेस है वो पूरा एक ही प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है. लिख रहा है स्कूल बैग में बिजनेस हो रहा है. स्कूल बैग मीन्स इट इज़ अ सिंगल कॉमोडिटी. यानी अगर वो कंपनी कई सारे प्रोडक्ट में डील करती तो उसे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता. बट यहाँ पर कंपनी स्कूल बैग खाली मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसके लिए वो डिविजनल ही सही है. यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 says that Goodline is a firm manufacturing electrical appliance. The CEO of the firm, Mr. Bharat Shukla, ensured that the products are at par with the current safety standard. All the products of the company are ISI marked and are thoroughly tried and tested before they are offered to the consumers. The company believes in using environment-friendly technique of the production and to take care of the long-term well-being of the customer. The company pays attention to the social, ethical and illogical aspect of the marketing. ये पूरा पैराग्राफ में लिखा है कि गुडलाइन कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैन्युफैक्चर करती है. भरत शुक्ला उस कंपनी के CEO हैं और वो प्रोडक्ट बनवाते हैं तो सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनवाते हैं. सारे प्रोडक्ट प्रॉपर्ली ISI मार्क्ड हैं, प्रॉपर्ली टेस्टेड हैं, उनको टेस्ट किया गया है तभी वो कंज्यूमर को दिया जाता है. और कंपनी ये भी बिलीव रखती है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक से प्रोडक्शन करें ताकि कंज्यूमर लॉन्ग टर्म तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें. कंपनी इसके अलावा कई तरह के सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मार्केटिंग पे भी फोकस करती है. यानी सोसाइटी को भी ध्यान रखती है, एथिकल चीज़ों, मोरालिटी को ध्यान में रखती है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ध्यान रखती है. तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट बाय द कंपनी इन द गिवन केस. इट इज़ एन राइट टू सेफ्टी. बिकॉज यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, गुडलाइन कंपनी, उसने क्या किया है, प्रॉपर्ली जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो प्रॉपर्ली टेस्टेड हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, उस पर ISI मार्क भी है और कंज्यूमर को प्रोवाइड करने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है, ट्राई किया जाता है उसको. सेकेंड, नेम द मार्केटिंग फिलॉसफी फॉलोड बाय द कंपनी. और इसमें ये भी बताया गया है कि कंपनी कौन सा मार्केटिंग फिलॉसफी फॉलो कर रही है. तो दैट इज़ एन सिंपल सा है. तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की तो बात हो ही रही है, तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो है, बट इसमें सोशल वेलफेयर की बात हो रही है. इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि द कंपनी पेज अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट. कंपनी सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी ध्यान रखती है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि कंपनी को कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन तो पूरा करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई तो करना है, बट उसके साथ साथ उसे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट रखना है, सोसाइटी को भी क्या करना है, सेफ रखना है. सो यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द मार्केटेबल सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, देयर शुड बी अ सोशल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन विद द एम ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. ओके, सो this is an solution of the question number 14 and
in today's video we discussed a lots of the practical case studies related to different topic like organizing, like a consumer protection, like a financial market. And you can see that how which type of the question asked by the CBSE in their final examination. So I hope आप सब लोग और सारी मेहनत करके क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए और केस स्टडीज़ को सॉल्व करिए. ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय.